Hello dear students, in the last class we started chapter 3 from the book Vistas, Journey to the End of the Earth. And in that class we also studied Before You Read, and today in this class we are going to start the main chapter. So get ready, let's start the class. Part of history. 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present-day Antarctica. So, dear students, before 650 millions of years ago, there was one supercontinent, one very big and united continent which was present around the present day Antarctica. So dear students, आज से लगभग 650 मिलियन वर्ष पहले जहाँ पे आज प्रेजेंट डे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, उसके आसपास एक बहुत ही बड़ा अ वेरी जायंट अमलगमेटेड मीन्स यूनाइटेड एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसको गोंडवाना बोला जाता था. इज इट क्लियर? देयर वर क्वाइट डिफरेंट देन, so things were quite different then. Humans hadn't arrived on the globe scene, and the climate was much warmer, hosting a huge variety of flora and fauna. So at that time, the things were completely different from the today's world. And the very exciting thing at that time was that humans did not appear on the globe. It means in that time, humans were not developed on the earth. And the climate was also much more warmer than the climate of today. And that's why, due to warm climate, the number of flora and fauna was very large at that time. It means small herbs, shrubs, forest animals. So these were present in huge numbers. तो उस टाइम पे अराउंड 650 मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो उस टाइम पे अर्थ पर या ग्लोब पर ह्यूमंस का डेवलपमेंट नहीं हो पाया था. और दूसरी एक्साइटिंग बात यह है कि जो क्लाइमेट थी, जो टेम्परेचर था, वो बहुत हाई था. क्लाइमेट काफ़ी वार्म थी, और वार्म क्लाइमेट होने की वजह से फ्लोरा फोना, कहने का मतलब जो ट्रीज़ होते हैं, जो श्रब्स होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, या फॉरेस्ट में रहने वाले जो छोटे स्मॉल एनिमल्स होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा थे. कहने का मतलब फ्लोरा एंड फोना, ट्रीज़, हर्ब्स, श्रब्स और इनमें रहने वाले स्मॉल एनिमल्स, ये बहुत ज़्यादा थे. For 50 million years, Gondwana thrived. But around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. तो उस टाइम पे जैसा हमने पढ़ा अभी, the whole Gondwana continent was united and humans were not present on that globe. Flora and fauna was much more than today, and for 50 million years Gondwana survived. Gondwana continued to be united, or as an united continent. But when the dinosaurs were disappeared from the earth and the age of mammals was started,
and it was the time when the development of humans was started, and in that age the supercontinent Gondwana was forced to be separate in different parts, and it became, and it created so many countries, a large number of countries as we see on the globe. तो क्या हुआ, 500 मिलियन ईयर्स तक जो गोंडवाना लैंड था वो यूनाइटेड रहा, वो एक रहा। और जब डायनासोर्स इस ग्लोब से एक्सटिंक्ट हो गए, गायब हो गए, एंड आफ्टर दैट जो मैमल्स की एज थी, या हम लोग कहते हैं स्तनधारियों का जो एज थी या काल था, वो स्टार्ट हुआ। सो इट वॉज द टाइम व्हेन द डेवलपमेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग्स स्टार्टेड। तो उस टाइम पे हम ये कहेंगे कि ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट वहाँ पे स्टार्ट हो गया था। तो जब मैमल्स की एज शुरू हुई लगभग 500 मिलियन वर्ष के बाद, तो फिर क्या हुआ, उसके बाद गोंडवाना लैंड डिफरेंट पार्ट्स में, बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक हो गया, और इससे बहुत सारे कंट्रीज़ बन गए। जैसा कि आज हम लोग ग्लोब पर या मैप पर देखते हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ हमको विजिबल होते हैं। तो वो गोंडवाना लैंड के टूटने के बाद वो सारे कंट्रीज़ बने थे। सो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। To visit Antarctica now is to be a part of that history, to get grasp of where we have come from and where we could possibly be heading. Now to visit that Antarctica where earlier it was around it Gondwana land, so it is the part of history today. तो अब उस गोंडवाना लैंड वाले एरिया को या अंटार्कटिका को विजिट करना एक हिस्ट्री का पार्ट है, एंड इट ऑल्सो रिमाइंड्स अस वेयर वी वर इन द ओल्डन डेज और बिफोर 650 मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, और अराउंड 600 मिलियंस ईयर्स एगो, और वी कैन से मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, एंड वेयर आर वी नाउ एट प्रेजेंट डे। तो ये उस एरिया की विज़िट करना, अंटार्कटिका की विज़िट करना, अब वो एक हिस्टोरिकल पार्ट है, और वो हमको ये भी रिमाइंड कराता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो मीन्स मिलियंस वर्ष पहले हम कहाँ थे, ह्यूमंस कैसे थे, कहाँ पे रहते थे, या पूरा वर्ल्ड कैसे यूनाइटेड था, और आज ग्लोब पर क्या पोजीशन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमको रिमाइंड कराते हैं ये वहाँ की जर्नी, और साथ साथ में ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स। ठीक है, तो जो ब्रेक हुआ था गोंडवाना लैंड में, तो उससे कॉर्डिलियन फोल्ड्स जो पड़े थे, एंड जो कैम्ब्रियन एज थी, प्री कैम्ब्रियन एज में जो ग्रेनाइट शील्ड्स थी, उनके इम्पोर्टेंस को समझना है। ओजोन एंड कार्बन, ओजोन और कार्बन की इम्पोर्टेंस को समझना है। इवेल्युएशन एंड एक्सटिंक्शन, तो इवेल्युएशन और एक्सटिंक्शन को समझना मीन्स कैसे कुछ स्पीसीज थे अर्थ पर, वो एक्सटिंक्ट हो गए, कैसे कुछ नए स्पीसीज का इवेल्युएशन हो गया, ह्यूमंस अर्थ पर नहीं थे, उनका इवेल्युएशन हो गया, वो आ गए अर्थ पर। डायनासोर अर्थ पर थे, वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये सारी चीज़ें समझनी है, कैसे न्यू स्पीसीज ग्लोब पर आ गए, ओल्ड स्पीसीज ग्लोब से गायब हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमको समझनी है। when you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind blocking. When we think all about these things, then we are present, we feel that so many things can be happen
in the time of a million of years ago. So it creates blockage in the mind. Imagine India pushing northwards, jamming against Asia, and buckle its crust and form the Himalayas. And you have to suppose the Indian part of globe where there is India today, it is pushing towards north. Means Indian plates are pushing towards north. And then there are some other plates which are from already north side, which is called Asian plates. And in this way, when Indian plates and Asian plates are pushing each other back, then in this way the Himalaya was created. तो आप सपोज करिए कि हिमालय कैसे क्रिएट हुआ। गोंडवाना लैंड में जो इंडियन प्लेट्स थी, गोंडवाना लैंड से सेपरेट होकर जो इंडियन प्लेट्स थी या इंडिया का जो एरिया था वो नॉर्थ की तरफ मूव करता है, और नॉर्थ की तरफ से एशियन जो प्लेट्स थी वो साउथ की तरफ। अब जब आपस में नॉर्थ से इंडिया एशियन प्लेट्स और इधर से इंडियन प्लेट्स आपस में टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं वो स्ट्राइक आउट करती हैं, तो दोनों के स्ट्राइक आउट होने से ये डेवलप होता है हिमालयास। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट। ठीक है, अब आगे क्या सोचना है, जो साउथ अमेरिका है दैट इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ अमेरिका, दैट इज स्लोली एंड स्लोली मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ अमेरिका एंड इट इज ट्राइंग टू ज्वाइन। तो साउथ अमेरिका वाला जो एरिया है वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ धीरे धीरे पुश हो रहा है, बढ़ रहा है, ओपनिंग अप द ड्रैग पैसेज, और ऐसे जो इससे इस मूवमेंट से ड्रैग पैसेज ओपन हो रहा है, एंड कोल्ड सर्कमपोलर करंट, और उस ड्रैग पैसेज के क्रिएट होने से कोल्ड सर्कमपोलर करंट मीन्स पोलर से उठने वाली और सर्कुलर मोशन में चलने वाली करंट डेवलप हो रही है, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, डिसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरीके से जो अफ्रीका मीन्स अंटार्कटिका है, इन सारी एक्टिविटीज से वो एकदम से कोल्ड, फ्रिज्ड, वास्ट, अनइंटरप्टेड, डिसोलेटेड और बॉटम ऑफ द वर्ल्ड पे ही रह जा रहा है। So it is the story which we started about Antarctica in this class today. So in this class, only this much. We will continue the chapter in next class. Thank you for watching this video.